ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਕਿਆ ਹੋਂ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਅਕਥ ਨ ਕਥ ਨ ਜਾਈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾਂ ਤਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਏਤੇ ਕੁਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ ਭਉ ਕਾ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਨਾਉ ਨ ਜਾਈ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਰਾ ਜਹੂਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਾਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਖ ਭਗਵੰਤ, ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਯੁਗ ਪਰਿਵਰਤਕ, ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਕਵੀ, ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਲਾਸਾਨੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਗਾਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ ਜੋ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਘ ਮਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਨ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ, ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਈ ਗੁਮਾਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ 14 ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਬ੍ਰਹਮੇ ਥਕ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਤੈਨ ਦੁੱਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਚੁਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲਵੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ
तो पहली गल ही उन्होंने ये गल कही कि चेत गोबिंद आराधिए होवे आनंद कणा, कि रब नूं जदों तू चेते करेगा, रब दा जदों तू सिमरन करेगा, गुरु दे दसे हुए मार्ग ते चलेगा, तो गुरु साहब ने पहली पंक्ति च स्पष्ट कर दिता तेनों मिलेगा कि कहते चेत गोबिंद आराधिए होवे आनंद कणा। कहते तू आनंद कणे दे विच बहुत आनंद दे विच चलिया जावेगा। एक गल का ध्यान रखियो, सुख भी दूजे कोलों मिलता है तो दुख भी दूजे कोलों मिलता है। सुख भी दी अदर ओरिएंटेड है, सुख भी दी अदर ओरिएंटेड है, पर आनंद सैल्फ ओरिएंटेड है। जिहड़ा आनंद है वो दूजे कोलों नहीं मिलता। दुख भी दूजे कोलों मिलता, सुख भी दूजे कोलों मिलता। मकान दे विचों सानूं सुख भी मिलता, पर एक गल का ध्यान रखना, मकान गिर जावे तो दुख भी वो मकान दिंदा है। कार सुख दिंदी है, कार दा एक्सीडेंट हो जावे वो कार दुख भी दिंदी है। बच्चा घर दे विच जन्म लवे कहने दे विच है तो सुख दिंदा है, ते आग्याकार ना रहे तो वही बच्चा दुख भी दिंदा है। सुख भी दूजे कोलों मिलता है, दुख भी दूजे कोलों मिलता है, पर जिहड़ा आनंद मिलता है ये रोज़ तुसी पढ़ते हो कित्थों मिलता? आनंद पिया मेरी माए सतगुरु, पहली पौड़ च कह दिता, तो 6वीं पौड़ च कह दिता, कहते आनंद आनंद सब कोई कहे। कहते हरेक नूं थोड़ा जा सुख मिल जाए, वो कहता मैनू आनंद च है जी, आनंद च है। कई बार दास नूं कोई मिले थोड़े सुख के दिन हो ना उसते, तो उन्होंने पूछो की हाल, कहते जी बड़ा आनंद विच है। पर थोड़े दिन बाद कोई दुख आ जाए तो उस बंदे का चेहरा देखण वाला हुंदा, उसदियां गल्लां सुणन वालियां हुंदियां हन, उहदे अखां 'च हंझू हुंदे हन। फिर उन्होंने पूछा जाए कि जिहड़ा थोड़े दिन पहला तू आनंद की गल करदा सी, तेरा आनंद वो चला कित्थे गया? मैं आप जी नूं बेनती करा, जिद्दण आनंद आ गया ना सत्संगी जनों, उस दिन तो फिर अवस्था जिहड़ी है ना वो फिर पंजवें पातशाह वर्गी बन जाएगी। जिद्दण आनंद दे विच आपां पहुँच गए उस दिन भाई मनी सिंह जी वर्गी अवस्था बन जाएगी। जिद्दण आपां आनंद दे विच चले गए उस दिन भाई भिखारी जी वर्गी अवस्था बन जाएगी। शादी है तां भी प्रसन्न हन, बेटे की मौत हो गई तां भी उस मौज दे विच हन। सत्संगी जनों, जदों आनंद है तो आनंद मिलता कित्थों है? गुरु साहब कहते आनंद आनंद सब कोई कहे, कहते आनंद गुरु ते जाणिया। कहते सिर्फ गुरु थानू ढंग दसेगा कि आनंद की अवस्था विच जाना किवें है। मैं बेनती करा, गुरमत के अंदर आनंद की अवस्था तक पहुँचना ही परमात्मा तक पहुँचना है। सहज दे विच चले जाना ही परमात्मा तक पहुँचना है। सत्संगी जनों, हुण थोड़ा जिहा मैं बेनती कर देवां, जिहड़ियां भैणां कुछ मिलदियां रहिंदियां हन उन्हां नाल तां विचार हुंदी रहिंदी है। हुण जदों इंसान सहज विच जाएगा, जदों इंसान आनंद विच पहुँचेगा तो इहदी अंदर दी अवस्था पता की बन जाएगी। तुसीं सब रल मिल सुखमनी साहिब जी का पाठ करदियां हो, रोज़ इन्हां पंक्तियां नूं पढ़दे हो जो पंजवें पातशाह दे बचन हन कि अंदर दी अवस्था की बनेगी। प्रभ की आग्या आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस्सोग, सदा अनंत है नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। गुरु साहब ने इस सारा कुछ स्पष्ट कर दिता। कहते तेरे अंदर की अवस्था ये बन जाएगी, तेनों सुख सुख नहीं लगेगा, तेनों दुख दुख नहीं लगेगा, तेनों अपना अपना नहीं लगेगा, तेनों पराया पराया नहीं लगेगा, तेनों सोना सोना नहीं लगेगा, तेनों मिट्टी मिट्टी नहीं लगेगा। जदों इंसान की ये अवस्था बन जाए तो समझ लेना कि वह आनंद दे विच है। या ये कह लो कि जदों आनंद च इंसान गया तो अपने अंदर की अवस्था ये बन जाएगी। हुण गुरु साहब कहते हैं पहली गल, कहते चेत गोबिंद, कहते ए इंसान चेते कर, उहदा सिमरन कर, उहनूं चिंतन दे विच लिया। तो मैं बेनती करा, कहते जदों गोबिंद परमात्मा के नाम तू चेते करेंगे, कहते मिलेगा कि? कहते चेत गोबिंद आराधिए। कहते जदों आराधना करेंगा, कहते चेत गोबिंद आराधिए होवै आनंद कणा। तो हुण अगली जिहड़ी पंक्ति कही वो पता की कही? कहते चेत गोबिंद आराधिए होवे आनंद कणा, कहते संत जना मिल पाइए। कहते संतां नूं मिल के ये अवस्था तक तुसी पहुँच सकते हो। हुण दास बेनती करे, जदों आपां माघ महीने का चिंतन करिए उहदे विच भी गुरु साहब ने ये गल कही, माघ मजन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। कहते ए इंसान मजन कहते हैं सत्संग चुब्बी लगाण। एक गल का ध्यान रखना, पहली पंक्ति च 2 बारी ये गल की, कहते माघ मजन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान।
इशनान करना ते मजन इहदे विच अंतर है सत्संगी जनों। जिहड़ा इशनान किया जाता ना, जिवें आपां कोई भी इंसान कर रहा है इशनान, तो जदों वो मग्गे दे नाल पानी अपने उपर पांदा है, ਉਹਦੀ बॉडी दूसरे बंदे नूं दिखदी है, पर जदों वो चुब्बी लगा जे, मज्जन दे अर्थ चुब्बी लगाना, पर जदों वो चुब्बी लगांदा पानी च ते कुछ समय वास्ते ਉਹਦੀ बॉडी तीजे परसन नूं नज़र नहीं आती है। तो इस करके हुण जिहड़ी चुब्बी लगाने की गल है ना, वो अंदर की गल की हुई है। गुरु साहब ने कहते ए इंसान तू अपने अंदर की अवस्था नूं पता की कर, कहते साधुआं दा। मैं हुण आप जी नूं बेनती ये कर देवां कि साधु सही मैने है कौन है, जिहड़ा उस परमात्मा के नाम का चिंतन करदा है। बाणी दे विच गुरु साहब ने बड़े स्पष्ट अंकित किए हैं, जिन्हां दे राही उन्होंने साधु की अवस्था का जिक्र किया होया है। उन्होंने कितना सोहना किया, संत रहत सुनो मेरे भाई, उहाँ की महिमा कथन ना जाई। कहते उन्होंने जिहड़ी महिमा है उन्होंने कोई वर्ण नहीं कर सकता। मेरे गुरु साहब ने कह दिता, जिन्ना सास गिरासना विसरै, हर नामा मन मंत, धन सही नानका पूर्ण सोई संत। संत की परिभाषा, संत की डेफिनेशन बाणी दे विच बड़ी जगह ते अंकित है सत्संगी जनों। तो माघ के महीने का जिक्र करते गुरु साहब कहते कहते प्यारिया, नाम जपण वालियां दी संगत विच जा अते थोड़ी चुब्बी मार। मैं आप जी नूं बेनती करां, आपां सत्संगी जनों बाणी नूं भी ना इशनान के तौर पर तो आपां कर लैंदे हां। एक गल का ध्यान रखना, जदों इंसान पानी दे विच जांदा है, दो ढंगां नाल तरिया जांदा सत्संगी जनों। एक तो पानी के उपर उपर तैरिया जाता है, एक पानी की गहराई दे विच जाया जाता है। तो एक गल का ध्यान रखना कि जदों इंसान बाणी भी पढ़दा, पानी अते बाणी का थोड़ा जिहा जोड़ करके देखना कि जदों आपां बाणी पढ़ते हाँ तो साडी हालत तकरीबन वो है जो गुरु पातशाह ने आसा जी की वार में जिक्र किया, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दीए, पढ़ पढ़ पढ़िए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डीए खाक, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास। गुरु साहब कहते तू पढ़ी तो जाता है। मैं आप जी ने यह भी बेनती कर देवां, कोई दास पढ़न का खंडन नहीं कर रहा है। नावल पढ़न नालों चंगी गल है सत्संग बाणी पढ़ लेना, होर किताबां पढ़न नालों वधिया गल है कि बाणी पढ़ लेना। पर गुरु साहब कहते इस तो अगे भी तू एक काम कर सकता है। कहते पता की कर सकता है, कुछ इंसान सत्संगी जनों फिर की करते हैं, जदों बाणी पढ़ते हैं ना तो जिथे थोड़ा जा उहदा चिंतन नाल करते हैं, तो जिथे थोड़ा जा उन्होंने समझ पैंदी है उत्थे थोड़ा रुक जाते हैं। रुकना ही चुब्बी लगाना सत्संगी जनों। ताही तो भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ा सोहना अपने बचनों के विच कहा है, कहते ए इंसान तैसे गुरबाणी बिखे सगल पदार्थ है, जोई जोई खोजै सोई सोई निप जावे। कहते बाणी दे विच सारे पदार्थ हैं, पर कहते मिलणगे पता किनू, कहते जिहड़ा इंसान थोड़ा रुक के उहदे विच चुब्बी लगाएगा। दास आप जी नूं ये बेनती करनी चाह रहा कि प्यारिओ, जिथे बाणी पढ़ते हो दास नूं पता लग्या कि जाप साहब जी की विचार भी आप जी ने नाल दी नाल कीती। जाप साहब जी के अंदर कलगीधर सच्चे पातशाह ने पता की कीता, परमात्मा के अनेकों नामां का वर्णन किया अते बार बार उहदे अलग अलग नाम लेके उस परमात्मा नूं नमस्कार कीती है। नमो सूर सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो इंद्र इंद्रे। सारी गल गुरु साहब ने नमस्तं अकाले, नमस्तं कृपाले, नमस्तं अरूपे, नमस्तं अनूपे, नमस्तं अपेखे, नमस्तं अलेखे, परमात्मा के अनेकों नाम वर्णन करके तो उस परमात्मा नूं नमस्कार कीती है। दास साहब जी ने यह बेनती करता है कि एक इंसान है बाणी पढ़ी तो जाता है पर रुकता बिल्कुल नहीं है। जदों आपां बाबा अतर सिंह जी मस्तू वालियां दा जीवन पढ़ीए ना, तो उन्होंने जीवन दे विच आंदा है कि वो अपने बचनों दे विच उन्होंने ये गल अंकित की है कि कोई गुरमुख प्यारा आया, उसनूं पुछया कि सुखमनी साहब जी का पाठ किन्ने समय च करदा। मैं बेनती करा भैणों मेरियो, कुछ बीबियां सानूं इहो जिहियां भी मिलदियां हन जिहड़ियां कहंदी जी असीं तां 25 मिनट सुखमनी साहब जी का पाठ कर लैंदे हां। बड़ी वधिया गल है, पर हुण थोड़ा जिहा तुसीं चिंतन करो, ख्याल करो, तुसीं भी पाठ करन वालियां बैठियां हो, थोड़ा जिहा ख्याल करो जिहने 25 मिनट दे विच पाठ कीता उहने बाणी दी विचार कदों कीती होएगी। इस करके दास बेनती करया करदा कि जिहड़ा तुहाडा रूटीन बनिया उस मुताबक पाठ करो।
पर उस तो बाद एक दो लाइनां दी रोज़ फिर थोड़ी विचार करया करो। ਜਦੋਂ विचार बाणी है की है, ध्यान दे वास्ते एक गल का ध्यान रखना, सिमरन है सत्संगी जनों, जिहड़ी बाणी है यह है विचार वास्ते। बाणी इस वास्ते कि गुरु कहंदा की है, गुरु ये कहंदा कि सिखा बाणी तो पढ़ ते अपना जीवन इस ढंग दा बना। गुरु तैनूं ये समझांदा है कि जदों तू इस ढंग नाल अपना जीवन बतीत करेगा तो तेरी अवस्था की बन जाएगी। हुण गुरु साहब सत्संगी नूं माघ दे महीने दे विच भी जिथे नाम जपण दी दान करन दी प्रेरणा दिंदे हन, उससे अगे जाके पता की कहंदे हन, कहंदे प्यारिया 68 तीरथ सगल पुन जी दिया प्रवान। कहंदे 68 क्योंकि सनातन धर्म दे अंदर जदों माघ महीने की महानता दर्शाई जाती है, जदों दर्शाई जाती सी, ये क्या जाता सी 68 तीर्थां ते जावो इशनान करो। गुरु साहब कहते तू कहते बदन करके शरीर करके इशनान करता रहा पर तेरे अंदर के विचारों का कोई फर्क ही ना पिया। कहते उस इशनान का फायदा की? पर गुरु साहब ने तो इत्थे तक कह दिता, कहते डड्डूआं ने तो मच्छियां ने भी बड़ा कहते पानी दे विच तारियां लगाइयां। कहते जेकर सिर्फ इशनान करना रब मिलता हुंदा, कहते फिर तो डड्डूआं ते मच्छियां नूं भी मिल जाता। हुण गुरु साहब ये कहना चाहते हैं, कहते प्यारे जिथे वह इशनान करता है उत्थे बाणी दे विच थोड़ी जी चुब्बी लगा। साधुआं दा दास बेनती कई बारी करया करता है कि प्यारिओ असीं सत्संग तां बहुत करते हाँ, पर एक गल का ध्यान रखना, सत दे संगी नहीं बनते। एक बहुत वड्डा अंतर है। सत्संग कर लेना कुछ होर गल है, सत दे संगी बन जाना कुछ होर गल है। तो जिहड़े सत दे संगी बनना शुरू कर दिंदे हैं ना, उन्हां दे उपर ही गुरु की रहमत हुंदी है। दास तकरीबन बेनती करया करदा कि प्यारे जदों गुरु की हजूरी च आंदे हो, गुरु के अगे हथ जोड़ के जिथे तुसी नमस्कार करते हो उत्थे अपनियां अरदासां भी करते हो कि सच्चे पातशाह आ चाहिदा। तो दास बेनती करया करदा कि प्यारिओ कदी थोड़ा जिहा ख्याल कीता कि जिहड़े गुरु के अगे आपां अरदासां करते हैं वो गुरु भी सानू कुछ कह रहा। सत्संगी जनों कदी असीं ये ध्यान नहीं देंदे कि गुरु सानू की कह रहा है। तो जिहड़े बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिता कि गुरु की कह रहा सत्संगी जनों, तो गुरु उसके उपर किवें प्रसन्न होएगा। दास बेनती करया करदा कि बच्चा बाप के कोलों मंगी जाए पर एक दिन बाप कह दे बेटा तू आ कर दे, तो वह कह के नहीं पिता जी ये तो मेरे तो हुंदा नहीं है। तो किन्नी कि देर संबंध जुड़िया रहेगा। जे असी चाहते हैं कि गुरु साडे ते कृपा करे तो जो गुरु कहता है जदों उसनूं आपां अपने जीवन दे विच लियावांगे तां साडे उपर रहमत होवेगी, बख्शिश होवेगी। तो आ जिहड़ा महीना शुरू होया सत्संगी जनों, इहदे विच भी गुरु साहब ने, मैं आप जी नूं बेनती करा, ये 12 माहां दे विच अखीरला महीना है। 12 माहां दे विच सत्संगी जनों, तो ये गुरु साहब ने पता की क्या है, फल गुण आनंद उपार्जन। गल इत्थे भी आनंद की कर दी। पंजवें पातशाह कहते जिहड़ी 12 महीनों के अंदर रब नूं मिलण दे वास्ते मैं गुणां दा जिक्र करके आया हाँ। कहते फल गुण तो मैं आप जी नूं बेनती करा, 12 माहां दे अंदर गुरु साहब ने ना 12 महीनों का जिथे जिक्र किया उत्थे महीनों के नाम थोड़े जे बदल के उन्होंने लए हुए हैं। एक गल का ध्यान रखना, शुरू दे विच चेत गोबिंद आराधिए, कैलेंडरां दे विच चेत नहीं है सत्संगों, चेतर है। मैं आप जी नूं बेनती करा, पर गुरु साहब कहते नहीं, उन्होंने कहा चेतर का जिक्र नहीं किया। उन्होंने चेतर भी कह सकते सन, पर यह संबोधन किया कि रब के नाम नूं चेता कर। उस तो बाद सत्संगी जदों आपां पढ़ते हाँ महीना अस्सू का, हुण महीने का नाम तो अस्सू है, तो गुरु साहब ने उत्थे पता की कहा, आ सुन। कहते प्यारिया आ ते सुन उस गल नूं, कितना स्पष्ट विच कीता। हुण महीने का नाम तो है भादरों सत्संगी जनों, तो गुरु साहब ने कहा होया भादोए, कि जिहदे अंदर दो पै हैं, दो पासे का प्यार है, दोवां तो डरदा है, एक संसार तो डरदा, गुरु दे कोलों डरदा नहीं है। कि इस तरह की गल गुरु साहब ने की है। बिल्कुल इस तरह ही आ जिहड़ा महीना है ना, इहदा वैसे कैलेंडर च नाम है फग्गण सत्संगी जनों, पर गुरु साहब ने फग्गण नहीं लिखा, उन्होंने लिखा फल गुण। कहते जेड़े मैं 12 महीनों का जिक्र करते हुए गुणा का जिक्र किया, कहते वह फल तैनूं पता की मिलेगा। कहते फल गुण आनंद उपार्जना, कहते तेरे अंदर कहते आनंद की अवस्था बनेगी। कहते फल गुण आनंद उपार्जना
कहते हर सज्जन प्रगटे आए, कहते जिहड़ा सज्जन परमात्मा है, सज्जन सच्चा पातशाह, कहते वो तेरे अंदर प्रगट होएगा। हुण अगे गल गुरु साहब ने फिर वही कर दी, कहते फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए, कहते संत सहाई राम के कर किरपा दिया मिलाए। कहते प्यारिया एक गल का ध्यान रखी, जिहड़े नाम जपण वाले हैं ना, कहते वो तेरी सहायता करनगे। कहते जदों तैनूं वो ढंग दसणगे, तो मैं आप जी नूं ये भी बेनती कर देवां, अपने गुरु ग्रंथ साहब जी हैं सत्संगी जनों, पर एक गल का ध्यान रखना, बाणी नूं खोल के बाणी नूं दर्शा के जदों गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश किए गए ना पहली बारी हरमंदर साहब जी के अंदर, तो इतिहास के बचन हैं, पंजवें पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी नूं ये गल कही सी, बाबा बुढ़ा अब खोलो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब जी बाणी बिल्कुल साडे गुरु हैं, पर एक गल का ध्यान रखना, बाणी दी विचार सत्संग नूं बाणी नूं खोल के तो साडे सामने किसी ना किसी नूं रखना पवेगा ना। इसे गल नूं गुरु साहब कहते हैं, कहते फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए, कहते संत सहाई राम के कर किरपा दिया मिलाए। कहते परमात्मा के मिलाप दे विच कहते संत बड़ी सहायता कर जाणगे। दास नूं एक गाथा याद आई, मेरे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के वक्त एक बड़े प्यारे जे सिख होए हैं, भाई अदली जी सत्संगी जनों। जिहड़े भाई अदली जी सन ना, वो पैणी पिंड के रहने वाले सन, अमृतसर के नेड़े सत्संगों। उसका हुण नाम जिहड़ा है वो चोला साहब है। हुण जदों चोले की गल की जाए ना, तो आ जिहड़ा चोला पाया आपां इहदे वल ध्यान चले जांदा, पर चोले के जिहड़े अर्थ हैं पता की है, मिठी वस्त। क्योंकि जदों पंजवें पातशाह उत्थे रहे, पंजवें पातशाह की याद विच उस नगर दे विच जिहदा नाम अजकल चोला साहब है सत्संगी जनों, उत्थे माता गंगा जी का भी अस्थान बनया होया, पंजवें पातशाह का भी अस्थान बनया है। तो कोई माता जिवें तुसीं प्रेमी हो, पंजवें पातशाह के वास्ते कोई मिठी वस्त बना के लैके आई सी, तो गुरु साहब ने उसका नाम चोला साहब रख दिता। उत्थे दे रहण वाले सन भाई अदली जी, चौथे पातशाह के वक्त सिख बने। कहते जदों चौथे पातशाह के वक्त सिख बने ना, तो अंदर की तड़प ये सी कि मैं रब की प्राप्ति करनी है। कहते गुरु साहब के बचन जदों सरवण करते उस तो बाद मनन करते। आपां लोकी सरवण तो बहुत करते हाँ, पर मनन करने वाले अपने चों बड़े घट हैं। तो गुरु साहब दीयां पंक्तियां रोज़ तुसीं पढ़ते हो, सुनिया मन्निया मन कीता पाओ। एक सिख नूं कहा कि तीन गल्लां तेरे अंदर होनियां चाहिए हैं, जो तू सुनदा है उन्होंने मनण विच लिया। मनण तो बाद कहते पता की कर, मन कीता पाओ कि निध ध्यासन कर, थोड़ा जिहा चिंतन कर कि मैं ये गल अपने जीवन विच लियांदी है कि नहीं लियांदी। उन्होंने कहते निध ध्यासन, कि बार बार एक गल दे वल ध्यान देना सत्संगी जनों। कहते भाई अदली जी चौथे पातशाह के वक्त सिख बने, अपने जीवन के गुण धारण करते करते गुण धारण करते करते पंजवें पातशाह के वक्त परम अवस्था के पहुँच गए। कहते जदों परम अवस्था पहुँचे ना, कहते एक दिन सुबह सुबह मैं आप जी को बेनती कर रहा, संत सहाई राम के कर किरपा दिया मिलाए। कहते जदों परम अवस्था पहुँचे एक दिन सुबह सुबह कहते तलाब के कंढे ते उस परमात्मा के नाम के चिंतन दे विच गए हुए सन। तो उस अवस्था विच सन जिन गुरु साहब कहते हैं, गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथै ऊँग ना भुख है हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत जिथे आत्म राम प्रकाश। उस परम अवस्था के विच पहुँचे हुए सन। कहते उदों पता की होया, कहते इलाके का एक नामी चोर जिसने चोरी की ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਦਰ ਉੱਪਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ मैं थोड़ी जी बेनती कर देवां, थोड़ी बहुती सुरती बरती थोड़ी एकाग्रता बना के रखो। थोड़ी जी अपनी जदों आ जाने हो ताही तां गुरु साहब ने कहा होया ना कि उंदे भांडे कच्छ न समावे।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਪਿਕਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੰਝੂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਤੁਮ ਆਏ ਜਗਤ ਮੇਂ ਜਗ ਹੱਸੇ ਤੂੰ ਰੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਰੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਧਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ। ਧਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਫਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਬਸ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਲਗਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਨਾਮ ਜਪ। ਅੱਗੇ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 2-4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਣੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵਾਂਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖੋ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜਨੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਹਾਈ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬੂढ़त को बेड़ी मिलत, जैसे बूझत दीपक मिलत तिलत। जैसे सारियां उदाहरणा गुरु साहब ने दित्तियां, कहंदे जिवें कहंदे कोई बंदा डुब रहा होवे, कहंदे उहनूं कश्ती मिल जावे, कहंदे दीवा बुझदा होवे उहनूं तेल मिल जावे। तो इस करके सत्संग नूं ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पज पूरन काम। कहते जदों सत्संग जाएगा, नाम जपेगा, कहते जिहड़े तेरे काम हैं, कहते वो सारे तेरे पूर्ण हो जाएंगे। कहते हुण भाई अदली जी अगे वाहिगुरू जपते हैं, पिछे वो चोर वाहिगुरू जपदा। हुण दो गल्लां सत्संग, एक तो परमात्मा का नाम, तो दूजा भाई अदली जी का औरा। सत्संगी जनों औरा कि उन्हां दियां वेव्स। इसे करके तो भगत कबीर जी ने एक बड़े सोहने बचन आखे हैं। कबीर जी कहते साकत संग ना कीजिए, दूरों जाइए भाग।
कहते ਜਿਹੜੇ इंसान परमात्मा के उपर विश्वास नहीं रखते, कहते प्यारे ਉਹਦੇ नेड़े ना जाए, कहते ਉਹਦੇ नेड़े चला गया ਉਹਦਾ ਔਰਾ कोई ज़्यादा वधिया नहीं होएगा, कहते तेरे उपर वो भी असर कर जाएगा। हुण भाई अदली जी का ਔਰਾ सत्संगी जनों ते नाल परमात्मा का नाम, कहते थोड़े चिर च वो चोर की लिव जुड़ गई। कहते जदों लिव जुड़ी, हुण भाई अदली जी ध्यान दे विचों बाहर आए, सत्संग विच जाना सी, गुरु के दर्शनां वास्ते जाना सी। हुण जदों भाई अदली जी उठ के तुरन लगे ना, तो चोर ने उन्हां दा पल्ला पकड़ लिया। जदों कहते उन्हां दा पल्ला पकड़िया तो भाई अदली जी नूं चोर कहंदा जी कित्थे चले हो रस दवा के? भाई अदली जी कहंदे मैं तो गुरु के दर्शनां वास्ते चलिया हाँ। वो कहंदा जी इन्ना रस दवा दिता, क्योंकि सत्संगी नूं एक गल का ध्यान रखो, जदों परमात्मा के नाम का रस आंदा ना, उदों फिर संसार के सारे रस छोटे लगने शुरू हो जाते हैं। अज सानूं संसार के रस वड्डे लगते हैं, ताही तो आप गुरु साहब के बचन पढ़ते हैं, रा रा रस निरस कर जानिया, होए निरसू रस पहचानिया, ए रस छाडे ओ रस आवा, ओ रस पीया, कहते ये रस नहीं पावा। कहते जदों वो परमात्मा के नाम का रस आ गया ना, फिर तो आ रस बचकाने जे लगणगे, ये रस बड़े छोटे लगणगे। अज सानू ये रस वड्डे लगते हैं, पदार्थां दे रस, माया दे रस, परिवार दे रस, बच्चियां दे रस, सत्संगी जनों मोह दे रस, लोभ दे रस, ये वड्डे लगते हैं। कहते जदों उठ के तुरन लगे, कहते कित्थे चले हो? कहते गुरु साहब के दर्शनों वास्ते। कहते उन्हें चोर कहन लगे जी मैनू भी लै चलो। कहते पंजवें पातशाह की हजूरी च पहुँच गया। मैं बेनती करा जिहड़ा सही मैनिया च साधु होएगा, जिहड़ा साधु का संग करेगा, साधु पता की करेगा, गुरु की हजूरी च पहुँचा देवेगा, अगे गुरु कृपा करेगा। सत्संगी जनों हुणी दास एक घर दे विच होके आया, वो बच्ची का सिमरन दे विच बड़ा मन, मैनू कहती जी साधना। मैं आख्या भैन मेरी है बच्ची है, एक गल का ध्यान रखी, जदों थोड़े समय के वास्ते साडा मन बस सुरत साडी अफुर अवस्था दे विच जानी शुरू हो गई, तुसीं भी सिमरन करदे हो, पर ध्यान रखना कि सिमरन फलीभूत तां मन्निया जांदा है जदों सत्संग नूं देश काल वस्तु तो उपर उठ जाए। जे असी सिमरन भी करते हैं बड़ी वधिया गल है, पर कोशिश करनी है कि आपां देश काल वस्तु तो उपर उठ जाइए। देश की है जिहड़ी जगह ते बैठे हो जगह भी भुल जाए, देश काल समा भी भुल जाए, तो वस्तु पता की है, वस्तु पदार्थ नहीं है सत्संगी नूं, इत्थे है विशा वस्तु। कि जिहड़ा असी वाहिगुरु दा परमात्मा दा नाम जपना शुरू किया ना, वो तो भी उपर उठ के शून्या दे विच चले जाइए, क्योंकि जिहड़ा परमात्मा है वो शून्य ही है। जदों पुछया सीगा कि परमात्मा तो पहला की, तो गुरु साहब ने कह दिता सी अरबद नरबद धुंधु कारा, तरन ना गगन हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद ना सूरज सुन समाध लगाइंदा। इस करके जिन्ना चिर असी ये अवस्था में नहीं जाते, मैं उन्होंने आख्या कि जो थोड़ा जहा अफुर अवस्था में जाना शुरू कर दिए ना, मैं आख्या फिर किसी को पुछण की लोड़ कोई नहीं है, फिर गुरु के अगे बेनती करो कि परमात्मा तू कृपा की, तू मेरे ते रहमत की कि मेरी थोड़ी सुरत टिकनी शुरू हो गई है, हुण जिहड़ा अगला रस्ता है तुसीं मैनूं अपने आप दसो, तो गुरु दसेगा। सत्संगी जनों तो कहते भाई अदली जी कहते चोर नूं लैके हजूरी च पहुँच गए। कहते जदों हजूरी च पहुँचे, जदों गुरु साहब ने बचनों की समाप्ति की, कीर्तन बंद करवाया, तो कहते बाहरों संगत विचों 3-4 आदमी उठ के खड़े हो गए। उन्होंने पंजवें पातशाह को बेनती की कि सच्चे पातशाह साडी एक बेनती है कि आप जी की संगत विच चोर है। पंजवें पातशाह मुस्कराए, कहते इत्थे तां बैठे सानूं सारे संत नज़र आते हैं, मैं बेनती करा सत्संग नूं असीं भी संत बनते हाँ, पर असी थोड़े समय वास्ते बनते हैं। जदों सत्संग च आके साडी सत्संगी जनों विकारां वल्लों मन हट जावे, संसार दे वल्लों मन हट जावे, गुरु दे चरनां वल बाणी वल साडा ध्यान लग जावे, असी भी उन्ने चिर वास्ते संत हैं। इसे करके दास बेनती करया करदा कि प्यारिओ चोरी वास्ते अते सत्संगी जनों भगती वास्ते अंदर दियां कुछ गल्लां बड़ियां पैरलर हन, बड़ियां बराबर हन। हुण तुसीं कहोगे जी चोरी की गल किधर दी, भगती की गल किधर दी, अंदर दीयां गल्लां किवें बराबर हन? मैं इनसाइड की गल कर रहा, बाहर तो इंसान की डिप्लोमैसी है, बाहर तो इंसान का दिखावा है। सत्संगी जनों तो कई बार पता की हुंदा आपां सत्संग संसार च तां बाहर का दिखावा करदे करदे गुरु घर आके भी दिखावा ही करी जाते हैं, तो एक पासे पढ़ी जाने आपां कि बिन बोलिया सब किछ जानदा किस आगे कीचे अरदास,
ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੇ ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀ ਜਾਂ ਰਿਦਕ ਸੁਧੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਰ ਨਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ, ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੋਰ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੈ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਜੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਭਗਤ ਨਿਡਰ ਹੈ। ਨਿਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਨਿਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਵੀ ਨਿਡਰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਭਗਤ ਕਦੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਹਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਰਟਡ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਕਦੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਂਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਬੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਰਟਡ ਪੁਰਖ ਹੈ। 3 ਗੱਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਜੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੈਂਸ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਚੋਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਚੋਰੋ ਚੱਕਾ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਸੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਭੂਮੀਏ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਖਿੱਧ ਸਨ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੱਲ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉੱਠੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੜ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਖੁਰਾ ਖੋਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਕੜਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੱਝੀਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੱਝਾਂ ਚੁਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ,
तो जिहड़ा चोर भाई अदली जी नाल आया सी, मैं आप जी नूं ये बेनती कर रहा कि साधु ने की कीता, नाम जपण वाले ने की कीता, गुरु दे दर ते लिआया, गुरु दी शरण दे विच लिआया। ते आपां रोज़ पढ़दे हां सतगुर आयो शरण काहदे वास्ते, मिलै सुख चिंता, हाँ सारा कुछ लैंदा जे सही ढंग नाल शरण विच आ जाए। पर अंतर तो ये रह जाता कि शरण आपां नूं सतसंगी नूं पता ही नहीं लग्या सही ढंग नाल शरण की है। मैं बेनती करदा सीगा, पंजवें पातशाह कहंदे सारे संत वो कहंदे सच्चे पातशाह बिल्कुल। जदों कहंदे पुछया ना पंजवें पातशाह ने कि तुसीं किवें, वो कहंदे जी साडे नाल दो खुरा खोजी हन, इत्थे आके निशान मुक जाते हैं। कहते जदों ये वार्तालाप चल रही सी ना, जिहड़ा चोर आया सी ना भाई अदली जी नाल उठ के खड़ा हो गया, कहता सच्चे पातशाह मैं ही चोर हाँ, सच्चे पातशाह चोर हाँ ते नामी चोर हाँ। सच्चे पातशाह मैं बेनती करदियां कि आज जिहड़े बंदे उठ के कह रहे हैं ना असीं चोर नूं पकड़न आए हाँ, मैं इन्हां तो डरदा मारा चोरी नहीं कबूल कर रहा। सच्चे पातशाह मैं तो चोरी सिर्फ इस वास्ते कबूल कर रहा हाँ कि जिहड़ी भाई अदली जी दा संग मिल गया अते जिहड़ा मैनूं तुहाडे चरनां च ले आया अते 15 मिनट मैं सिर्फ आप जी दे प्रवचन सरवण कीते, उन्हां बचनां दा सदका मेरे जीवन ते बैठे बैठे इन्ना असर हो गया कि मैं संगत च बैठे तोबा कर दी कि अज तो बाद मैं चोरी नहीं करांगा। बस साधु दा संग ये करदा है। ते पता फिर कितनी कृपा उसके उपर हुई। पंजवें पातशाह ने अपने धर्म का धार्मिक प्रचारक बना दिता अते छेवें पातशाह ने अपनी सैना का सैनापतिदार बना दिता। तो एक दिन मौका आया उसे चोर नूं सत्संग ने जिहड़ा चोरी करके साधु का संग करके संगत विच पहुँच गया, गुरु की हजूरी च पहुँच गया, शरण दे विच पहुँच गया। तो गुरु ने पता की किया, एक दिन छाती नाल लगा लिया तो ये बचन कर दिता, विधि चंद छीना गुरु का सीना। इन्ना जीवन इन्नी जीवन दे विच तब्दीली आ जाती है सत्संगी जनों। इस करके गुरु साहब कहते हैं, कहते फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के कर किरपा दिया मिलाए। कहते गुरु तुहाडे ते एक किरपा करेगा, राम दे नाल परमात्मा दे नाल तुहाडा मिलाप करा देवेगा। दस होर इहदी विचार शब्द ही अगे ले जावे समा इजाजत नहीं देवेगा, क्योंकि दास दा मन बनया इस्त्री सत्संग सभा जिन्होंने तुसी 40 दिन सत्संगी जनों। मैं थोड़ा जिहा आप जी नूं बेनती करनी चाहता है, मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जदों संसार च आए ना तो इस्त्री नूं बड़ा नीवां दिखाया जाता सी। किसी ने इसनूं पैर की जुत्ती किया, किसी ने इसनूं नशा किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। पर मेरे गुरु साहब ने आसा जी की वार विच गल कह दी, कहते पंड जम्मीए पंड मंगीए पंड निमीए पंड मंगण व्याहो, पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राओ, पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बादान, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। ये अर्थ पता की है, पंड सत्संगी नूं इस्त्री नूं क्या है, वो पांडा जिहदे विचों इंसान पैदा होंदा। गुरु साहब कहते पंड जम्मीए, कहते पंड निमीए, कहते इस्त्री तो कहते इंसान पैदा होया, उहदे पेट दे विच ही रह के उहदी परवरिश होई, उहदी बनतर बनी। पंड जम्मीए पंड निमीए पंड मंगण, कहते अखीर दे विच कहते इस्त्री नाल ही कहते मंगणी हुई। पंड मंगण विआहो, कहते विआह भी इस्त्री नाल होया। पंड जम्मीए पंड निमीए पंड मंगण विआहो, कहते पंडो होवे दोस्ती, कहते संसार दे विच जिन्ना पसारा जिन्ना मेल जोल कहते इस्त्री करके हुंदा। पंड पंडो होवे दोस्ती पंडो चले रहो, कहते संसार दे विच कहते जिहड़ा रस्ते रिश्ते बनते हैं राह चलते हैं कहते इस्त्री करके बनते हैं। अगे गुरु साहब कहते पंड मूआ पंड पालीए, क्योंकि उन्होंने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने आखे, कहते तुसी अपनी हालत तो देखो, कहते किसी की इस्त्री मर जाए कहते फिर दूजा ब्याह करने वास्ते फिर इस्त्री लभदा फिरदा, कहते पंड मूआ पंड पालीए, कहते पंड होवे बादान। कहते अगे भी जिहड़ा कहते तुहाडा परिवार चलिया कहते इस्त्री करके तो चलिया। फिर गुरु साहब ने आख्या सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोई। कहते कोई भी इस्त्री तो बाहर नहीं है, कहते जेकर कोई है पंडो बाहर कोई, कहते इको एक परमात्मा है जिहड़ा इस्त्री तो बाहर है। हुण मैं बेनती करा सत्संगी नूं, जो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह तो एक सिक्खी चली ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिहड़ियां बख्शिशां परमात्मा तो लैके आए
सब तो पहली जिहड़ी किरपा हुई इस्तरी ते हुई दौलतां दाई दे उपर। सतसंगी जनों, जदों गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का जन्म होना सी, दौलतां दाई सी सेवा दे विच, तो वह अपना मन पता की बना के गए सी, क्योंकि पिता पटवारी सन कल्याण दास जी सतसंग, अमीर आदमी सन, राय बुलार दे नाल पिठ लगदी सी, उन्हां दी पहुँच सी सतसंगी जनों। तो दौलतां दाई ये बेचारी सोच के आई सी, पटवारियां दे बच्चे नूं जन्म देना है, जेकर बेटा पैदा होया ना तो मैं आ मंगांगी, आ मंगांगी, आ मंगांगी। तो पिता कल्याण दास जी ने भी कहते पूरा थाल परोस के रखा होया सीगा कि जे बेटा पैदा होया ना तो दौलतां दाई दियां झोलियां भर देवांगा, जन्मां जन्मां दी भुख मिटा देवांगा। पिता कल्याण दास जी दे भी मन च विच ये चल रहा सीगा। पर कहते जदों गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का जन्म होया, कहते जदों दौलतां दाई दे हत्थां विच गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आए सतसंगी जनों, जदों निरंकार नाल स्पर्श होया तो पता की होया सतसंगों, जन्मां जन्मां दी भुख मिटा दित्ती। कहते दौलतां दाई बाहर आई, पिता कल्याण दास जी इंतजार करते सन, कहते वधाइयां दित्तियां दौलतां दाई ने। तो कहते जदों कहते उस दे वास्ते जिहड़ा थाल परोस के रखा सी ना पिता कल्याण दास जी ने, कहते जदों दौलतां दाई ने पकड़ाण लगे ना तो दौलतां दाई ने पता की क्या सी, कहते रहण देवे पटवारिया, तेरे घर जिहड़ा पुत जम्मिया है ना, कहते उन्हें तो मेरी जन्मां जन्मां की भुख मिटा दी। हुण जन्मां जन्मां की भुख सतसंगी नूं जिहदे हिरदे दे विच नाम का प्रवेश मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह करा कर देणगे, उहदी ही जन्मां जन्मां की भुख मिट सकती है, दूजे दी नहीं मिट सकती। सब तो पहली जिहड़ी बख्शिश हुई सतसंगी नूं वो दौलतां दाई दे उपर हुई, तो दूजी बेबे नानके दे उपर हुई। मैं बेनती कर रहा इस्तरी सतसंगी जनों, जिहड़ी दूजी किरपा हुई जिन्हों मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने अख दिती बेबे नानकी नूं, इतिहास दे विच लिखिया कि जेकर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का कोई सब तो पहला सिख है तो कहते बेबे नानकी है, जिन्हों पहचान आई सी कि वीर भी है मेरा, ये पीर भी है मेरा, जिन्हें निरंकार मन्निया गुरु नानक देव सच्चे पातशाह नूं, तो तीजी बख्शिश राय बुलार ते हुई सी। हुण मैं आप जी नूं बेनती करा सतसंगी नूं, उधर आपां हुण जिथे बख्शिश हुई उत्थे बख्शिशां देण दे विच भी इस्तरी दा बड़ा वड्डा हत्थ है। जदों मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे अंदर तड़प पैदा हुई ना कि गुरु धारण करना, चलो इतिहास बड़ा लंबा है, मैं बेनती करा सतसंगी नूं, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे भरा दे घर दे विच सतसंगी नूं जस्सू जिहड़े तीजे पातशाह दे भतीजे हन, उन्हां दी धर्म पत्नी जिहड़ी सी ना वो पता कौन सी, बीबी अमरो। ते बीबी अमरो पता कौन सी, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह की सपुत्री सतसंगी जनों। जदों तड़प पैदा हुई गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के मन विच कि मैं गुरु धारण करना है, तो हुण बीबी अमरो जी रोज़ सुबह अमृत वेले उठते सन, तो जदों दुध रिड़कना पाना सतसंगी नूं ते नाल दी नाल बाणी पढ़नी शुरू कर दिंदे सन। कहते जदों बाणी पढ़ते सन ना अगे 20 कन्नां दे विच अमरदास जी के कन्नां दे विच बाणी पैंदी सी सतसंगी नूं, पर उधर ध्यान नहीं सी। पर जदों मन बन गया कि गुरु धारण करना, तो अज जदों बीबी जी पाठ कर रहे थे ना बीबी अमरो जी, तो पाठ चलता सीगा सतसंगी जनों, करनी कागद मन वसवाणी बुरा परा दुई लेख पे, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलीए तो गुण नाही अंत हरे। कहते जदों ये शब्द सरवण किया गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जिहड़े ने अजे गुरु धारण भी नहीं किया, गुरु बनना तो बड़ी दूर की गल सी, उन्हां दे अंदर सतसंग नूं खिच पई। जदों खिच पई तो कहते कंध दे नेड़े चले गए, कहते सारा शब्द सरवण किया सतसंगी जनों। जदों ये पंक्तियां आईयां होणगियां ना, पिया मनूर फिर कंचन होवे जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमृत ओ देवे तो नानक तृष्ट सदेहा। कहते वो गुरु फिर किरपा की करता है। हुण इहदे अर्थ पता की हैं, पिया मनूर फिर कंचन होवे, मनूर सतसंगी नूं वो लोहा हुंदा, इस तो पहला शब्द है तां ज़्यादा विचार हो सकती है जे समा होवे। उहदे विच गुरु साहब कहते हैं, कहते ए इंसान जिहड़ा मन है वो लोहे की न्याई है, कहते शरीर भट्ठी है, तो कहते जदों कहते लोहे नूं ज़्यादा सेक मिल जाए ना, तो कहते पता सेक आदा मिल रहा है, कहते पंच अगंतित लाग रही, जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार हैं, कहते उन्हां दे कोयले पाप पड़े तिस उपर, कहते पापां दे कहते कोले पई गए, कहते जिहड़ा मन सी ना वो मनूर हो गया। हुण मैं आप जी नूं ये कहना चाहना, मनूर पता किहनूं कहते हैं, मनूर सतसंगी नूं एक लिमिट तक लोहे दी रहिंदा है कि उहदा कुछ भी बनाया जा सकता है।
पर जदों उन्होंने ज़्यादा सेक मिल जाए, ज़्यादा गरमैश मिल जाए तो वह मनूर बन जाता है। फिर जिन्हों आप खंगर कहते हाँ वह फिर कुछ नहीं बनता। पर गुरु साहब कहते कोई मनूर भी हो गया किसी का मन, कहते उन्होंने गुरु मिल जाए तो कहते गुरु पता की करता है, कहते पिया मनूर फिर कंचन होवे, कहते गुरु एक किरपा करता उन्होंने फिर सोना बना दिंदा। कहते पिया मनूर फिर कंचन होवे, जे गुर मिले तनेहा, कहते वह करता की है एक नाम अमृत वो देवे, कहते वो नाम दे दिंदा अमृत रूपी। कहते जदों इंसान उस नाम की कमाई करता कहते तो नानक तृष्ट सदेहा, कहते वो सारिया तृष्णा कहते सारा कुछ खत्म हो जाता, तृप्त हो जाता। जदों गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के कन्ना च ये पंक्तियां पईयां ना, कहते दिन चढ़िया तो बीबी अमरों नूं कहण लगे बेटा ये किहदी बाणी पढ़दी है। मैं आप जी नूं बेनती कर रहा गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं मार्ग दिखाण वाली बीबी अमरो है सतसंगी जनों। जदों अमरदास जी ने पूछा कि कहते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह की बाणी, अमरदास जी कहते बेटा फिर मैनू उन्होंने को लै चल। वो कह लगे जी वो तो संसार विच नहीं हैं, पंज भूतक चोला बदल गए। कहते थोड़ा जिहा मन पर आया अमरदास जी का कि जिन्हां दी दर्शनां दी तड़प पैदा हुई सी वो संसार विच नहीं हैं, मैं गुरु किहनूं धारण करा। कहते जदों थोड़ा मन भरिया ना बीबी अमरो जी कहते जी जान लगे वो जिहड़ी बख्शिश करके गए वो मेरे पिता गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह के उपर करके गए, उन्हां दे विच जोत टिका के गए। जोत उहा जुगत साए सह काया फिर पलटी है कि काया तो उन्होंने पलट ली पर जोत टिका गए मेरे पिता गुरु जी विच। कहते अमरदास जी ने सिर चुकाया, कहते बेटा फिर उन्होंने को लै चल। इतिहास में आप जी जानते, मैं बेनती करना सत्संगी जनों बीबी अमरो पहली मैं बेनती की है कि इस्त्री ने गुरु ने की महानता दी। दूजी गल सत्संगी जनों बीबी अमरो तो हुण जदों आपां इतिहास नूं पढ़ीए सत्संगी जनों, फिर जदों जंगे मैदान के अंदर जरूरत पई तो माता भागो का जीवन पढ़ लवो। जिहड़े 40 सिंगत वदावा दे के आ गए सन, गुरु नूं कह के आ गए सन कि तू साडा गुरु नहीं तो असी तेरे सिख नहीं। पर जदों वापस आए सत्संगी नूं मैं बेनती करा इतिहास के अंदर कि माई माता भागो दे सत्संगी नूं पिता जी उहदे विच सन 40 दे विच, माता भागो जी दे देवर भी उन्हां 40 दे विच सन, माता भागो दे पति भी उन्हां दे विच सन। कहते जदों उन्होंने देखा कि यह तो वदावा दे के आ गए तो माता भागो ने पता की किया सीगा, कहते ये चूड़ियाँ तुसीं पा लवो, हथियार सानू पकड़ाओ असी जांदियां हां। उन्होंने अंदर जिहड़ी सत्संग सुरत जाग सौ गई सी उसनूं फिर उजागर कर दिता इस्त्री ने माता भागो ने। तो फिर जंगे मैदान के अंदर गई, आप जी को इतिहास का पता इत्थे तक नहीं सत्संगी जनों, फिर अखीर तक पता कित्थे गई। मैं आप जी को बेनती करा डल्ले का जिक्र तो तुसीं पढ़ते हो, पर मैं एक आप जी को बेनती करदे मैं डल्ला रस्ते चों वापस आ गया सीगा, डल्ला नाल चल पिया सीगा जदों गुरु साहब ने दखण की यात्रा करनी है। ਜਿਹੜੇ डल्ले दी आपां साखियां सुनते, जिहड़ा चौधरी सी जिहने कह दिता सी सच्चे पातशाह जे मैं हुंदा मेरियां फौजां हुंदियां ते बच्चे शहीद किवें हो जांदे। पर जदों डल्ला जदों कलगीधर सच्चे पातशाह ने डल्लिया इन्ना प्यार करदा ते चल मेरे नाल, तो पता कि होया सी एक दो पड़ाव तो बाद डल्ला वापस आ गया सी। कभी इतिहास पढ़ के देखना, पर माता भागा जूं नाल चली मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह दे नाल सत्संग नूं, फिर नांदेड़ दी धरती तक नाल ही रही है। तो मैं कह के गल समाप्ति कर देवां किन्नी बहादुर सी आप जी उहदी बंदूक दे। तो अज भी दर्शन करदे जदों हजूर साहब जांदे हो, जदों सत्संगी जनों आपां इतिहास पढ़ो ना, पूना 17 की जेल दे विच जिहड़े रुस्तम राज ते बाला राव, जदों हजूर साहब जावो, हजूर साहब तो जदों तुसीं जांदे हो सत्संगी जनों अगे दर्शन करने वास्ते की अस्थान का नाम जिथे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का नानक चीरा, तो रस्ते दे विच एक पड़ाव आंदा जिथे संगतां लंगर छकदियां हन। उत्थे दे रहण वाले रुस्तम राव ते बाला राव जिहड़े कि चौधरी सन, राजियां की तरह रहिंदे सन, पूना 17 की जेल च बंद सन। तो जिहड़ा चौकीदार सी ना जेल का, तो वह कलगीधर सच्चे पातशाह दे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे दर घर दा प्रेमी सी। कहते जदों बाला राव रुस्तम राव के अंदर कहते डर पै होया ना, तो उस संगत करनी शुरू कर दी उस चौकीदार दे नाल, उस पहरेदार दे नाल जिहड़ा सत्संग नूं जेल का जेलदार सीगा, चौकीदार सीगा, गेट कीपर सी। तो उन्हें आख्या कि
ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। 5 ਪੁੱਤਕ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ, ਦਿਓ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ। ਹਾਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਵੇ ਨਾ ਬਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਹਨ, ਅਜੇ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਮੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋਤੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਓ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਖਿਮਾ ਸਭ ਕਰਨਾ, ਬਿਰਧ ਖਾਲਸੇ ਸੰਦਾ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।